when we see game theory, basically, game means a procedure or a strategy to gain your own objective. Procedure, strategy to gain your objective. This is what is game in this whole process, and we are going to study different things in different games in game theory. We are going to study that. So number one is what is game? Why it is game? Game means a plan, a strategy, a procedure as per which you will gain your objective. You want to achieve something and you will achieve something by that plan. We say this thing, a procedure. Now in this there are also terminologies like players. One is a strategy. I think it's clear now. You must have written it. The second is a player, actor. Remember, I am just defining the terminologies that I am going to use in today's lecture in the very beginning, so that things may remain clear to you. The other terminology is a player, actor. Who are players and actors? Players are actors, decision makers. Decision makers, when I will say player, when I'll say actor, remember that they are decision makers of that country, or yourself, or whosoever we are talking about. So the decision maker in this theory is called a player, a strategic decision maker, a strategic decision maker. Strategy क्या होती है? I mean, game is okay, player slash actor, it's done. What is a strategy? Once again, a plan of action. A strategy in this case is a plan of action which a player takes in given circumstances. Player कौन है? Player is a the decision maker. ठीक है, तो वो क्या प्लान इख्तियार करता है, plan of action. This is what is called strategy in this whole process that I will speak about. Payoff, P-A-Y-O-F-F off. What you gain after taking a particular decision is payoff. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि you are struggling and you are trying to get something. You are investing 10 rupees and you are इसका जो आपको जो फायदा होता है वो 1 रुपए का होता है, तो ये तो नुकसान में हुआ. लेकिन पे ऑफ का मतलब ये होता है कि आपने what you gain after taking a particular decision. And when I say you, I mean you are an actor. When I say you, I mean you are a player, and you are adopting a strategy to get into a procedure. और procedure का नाम क्या है? Game. I hope ये 4 terminologies तो आपको clear हो गई हैं. ठीक है? Game, player, strategy, payoff. ठीक है, ये 4 चीजें तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं. What is game theory? In a competitive situation, in a competition, remember, in a competition, an optimal decision is optimal decision or best decision that a decision maker takes, that a player takes, is game theory. It is also called a science of strategy. Strategy मैंने क्या कहा था? Plan of action. दोबारा से सुनिएगा. In a competition, we are saying that in a competition, you are taking the best decision, optimal decision in a competition. अब वो कंपटीशन क्या है? इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वो कंपटीशन है, पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान वो कंपटीशन है, इंडिया और चाइना के दरमियान वो कंपटीशन है. हमें जो भी कंपटीशन है, द बेस्ट डिसीजन इज टेकन, उसको कहते हैं हम ऑप्टिमल डिसीजन इज टेकन. तो क्या ये चीजें हम कह सकते हैं कि यू आर अडॉप्टिंग अ स्ट्रेटजी फॉर द बेस्ट डिसीजन? हाँ, ये भी कहा जा सकता है. हम कहते हैं कि अ साइंस ऑफ स्ट्रेटजी, इसको गेम थ्योरी को ये भी कहा जा सकता है. ठीक है, ये भी कहा जा सकता है. स्टडी द बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. आप करते क्या है असल में?
गेम थ्योरी में आप करते क्या है, यू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट। वो जो सामने खड़ा हुआ है डिसीजन मेकर, यानी पाकिस्तान में आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फॉरेन ऑफिस में, जीएचक्यू में एक प्लान ऑफ एक्शन, एक स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, and they don't know what is happening there in India, in their foreign office कोई स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। ये दोनों एक दूसरे को बताते तो नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे डिसीजन मेकर वो देख रहे हैं उसके बिहेवियर से कि वो क्या सोच रहा होगा। याद रखिए, इसको बड़ा प्यारा एक और नाम भी दिया जाएगा जा सकता है। ओके, I'm going to speak about that, right? I'm going to hit it now. यहां पर फॉरेन ऑफिस में डिसीजन मेकर्स आप जैसे लोग खड़े हुए हैं, आप जैसे एक्टर्स खड़े हुए हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि इंडिया में डिसीजन मेकर क्या सोच रहा है। उसकी सोच की बुनियाद आप परसीव करते हैं कि वो क्या सोच, उसकी बुनियाद पर फिर आप एक्शन लेते हैं। यानी मैं इसको ये कह रहा हूं कि टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द एक्टर फ्रॉम द अदर साइड। आप उसके बिहेवियर को भी स्टडी कर रहे हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़े आप समझ रहे हैं, अच्छा आप ये यूं करेगा, ये यूं करेगा, लिहाजा मुझे ये कर लेना चाहिए। तो असल में आप क्या कोशिश कर रहे हैं, आप उसके परसेप्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वंडरफुल, इट्स द गेम ऑफ परसेप्शन। मेरी बात समझ आ रही है? गेम थ्योरी इज द गेम ऑफ परसेप्शन। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है, और उसकी सोच की बुनियाद पर आप यहां से कोई डिसीजन लेते हैं ताकि आप उसमें, और वो ताकि आपका वो डिसीजन बेस्ट डिसीजन हो जाए। गेम थ्योरी किसे कहते हैं, दोबारा से सुनिएगा। इन अ कॉम्पिटिशन यू आर टेकिंग द बेस्ट डिसीजन, you are taking optimal decision, and this is what is game theory. What is game? Game is a procedure for game is a procedure for gaining your, आप एक पूरा लाए अमल से गुजरते हैं ताकि जो चाहते हैं वो हासिल कर लें। आप एक प्लान ऑफ एक्शन अख्तियार करते हैं, स्लैश उसे स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। आप खुद कौन है, डिसीजन मेकर है, स्टेट डिपार्टमेंट में खड़े हुए हैं, अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में खड़े हुए पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो ये डिसीजन जो लेते हैं आप, जो स्ट्रैटेजी कहते हैं, ये क्यों लेते हैं? सो दैट इट मे पे ऑफ यू, ताकि ये इसका कोई फायदा हो आपको। मैंने पे ऑफ को क्या कहा था, व्हाट यू गेन बाय टेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन। ठीक है, तो ये जो गेम थ्योरी है, मैंने कहा कि आप यहां पर बैठकर बिहेवियर ऑफ इंडिया को स्टडी कर रहे हैं, और फिर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वहां पर जो फैसला लेने वाला है, यानी स्ट्रैटेजिस्ट जो है, यानी जो एक्टर है इंडिया के फॉरेन ऑफिस में, वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, और अब अगली मूव इसकी ये होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर, आप परसीव कर रहे हैं, परसेप्शन का अंदाजा लगा रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है। तो इसलिए गेम थ्योरी को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, वो क्या नाम है, गेम ऑफ परसेप्शन। आपके दरमियान कोई कम्युनिकेशन लिंक नहीं है, बस उसका जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर पर आप पाकिस्तान में बैठकर सोच रहे हैं कि अब अगला मूव ये करेगा, लिहाजा मुझे इसको इस तरह काउंटर करना चाहिए। आप उस कंपटीशन को जीतना चाहते हैं। गेम का मतलब क्या है, असल में गेम का मतलब है कि वो कंपटीशन, वो तमाम का तमाम मामला जिसको कि आप जीतना चाहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें तमाम में हम परसेप्शन देखेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं होता, और कंपटीशन होगा। याद रखिए, रिमेंबर, गेम मींस कंपटीशन। यहां पर देखिए आप, गेम थ्योरी को गेम क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये हॉकी की तरह एक कंपटीशन, ये क्रिकेट की तरह एक कंपटीशन है। ठीक है, ये कोई एक उसी तरह के एक कंपटीशन, लेकिन यहां पर वो कंपटीशन डिफरेंट है। ओके, अब क्या करते हैं हम, गेम थ्योरीज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज जीरो सम गेम, एंड नंबर टू इज नॉन जीरो सम गेम। इसका दूसरा नाम भी है नॉन जीरो सम गेम का, वो जब मैं इस पर आऊंगा तो बताऊंगा। नंबर वन इज जीरो सम गेम। जीरो सम गेम, टोटल नेट इज, आप देख लीजिए, नेट इज द सेम। मैं आता हूं, समझ करिए यहां पर जीरो सम का मतलब क्या होता है। गेन ऑफ वन इज द लॉस ऑफ द अदर। गेन ऑफ वन इज द लॉस ऑफ द अदर। मुझे जो कुछ भी मिलेगा, ये जरूरी है कि आप हारें। यानी मेरे 50 मार्क्स हैं, आपके 50 मार्क्स, हम दोनों बराबर हो गए। आपके 49 मार्क्स हो गए, तो याद रखिए 49 मार्क्स हो गए तो इसका मतलब मेरे 51 होंगे, ताकि वो मैं एक की गेन कर लूं। तो गेन ऑफ वन इज द लॉस ऑफ द अदर। दूसरे को हर सूरत में हारना है। अगर आप 51 ले जाएंगे तो मुझे हर सूरत में 49 मिलेंगे। एक और ले जाएं आप, फिर कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, मेरे 48 हो जाएंगे। गेन ऑफ वन इज द लॉस ऑफ द अदर।
इसमें हर सूरत में एक ने हारना है। इसका मतलब कभी ऐसा भी होता है कि दोनों जीत जाते हैं, वो बाद में बात करते हैं। अभी हम गेम, जीरो सम गेम की बात करते हैं। इन अ कॉम्पिटिशन गेन ऑफ वन इज द लॉस ऑफ द अदर। हम ये इस तरह से कह सकते हैं कि टोटल सम इज जीरो। क्योंकि देखिए ना, अगर आपका 51 है, मेरा 49 है, तो इक्वल, आप उसे देख लीजिए, टोटल सम जीरो हो जाएगा, यानी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर मैं मजीद एक लूज करता हूं तो आप 52 हो जाएंगे, मैं 48 हो जाऊंगा, मैं मजीद लूज कर गया, लेकिन टोटल आप देख लीजिए वो वही है, वो क्रॉस हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी टोटल कॉस्ट उसकी वही है 100%। तो हम ये कहते हैं, मुझे जरा रिफ्रेश कर लेने दीजिए, जीरो सम गेम, अ सिचुएशन इन विच ईच प्लेयर गेन और लॉस is exactly balanced by the gain or loss of the other decision maker, of the other player, of the other actor. If I am gaining, it means you are losing something. If I am losing something, it means definitely you are gaining something. Gain or loss of one is balanced by the gain or loss of the other. तो इन टोटल क्या होता है, गेन से लॉसेस को माइनस कर दीजिए। आप देख लीजिए, इट वुड बी, द सम विल बी जीरो। आखिर में रिजल्ट जो है वो उसका जीरो आ जाएगा, सारा का सारा उसी तरीके से, क्योंकि वो तमाम का तमाम माइनस हो जाएगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो गेन और लॉस की मैंने अभी जो बात की है आपको, जरा थोड़ा सा यहां पर रुक जाइए, प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली मतलब ये है कि व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, हाउ वी कैन अप्लाई इट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। गेन ऑफ वन इज द लॉस ऑफ द अदर, इसको अप्लाई भी तो करना है ना। देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अमेरिका एंड इंडिया, दे आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर। ठीक है, इन साउथ एशिया, दे आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर इन साउथ एशिया। तो देयर डिसीजन मेकर्स ने जबरदस्त, इंडिया के डिसीजन मेकर्स ने कमाल किया है, सुपर पावर को इस रीजन में ले आए हैं और उनके साथ वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। जबरदस्त कमाल हो गया कि नहीं? उनके लिए तो बड़ा पॉजिटिव हो गया, हमारे लिए नुकसान हो गया, उनके लिए प्लस, हमारे लिए माइनस। ठीक है, उनके लिए प्लस हो गया है, हमारे लिए माइनस हो गया, उनके लिए बहुत कमाल हो गया। इंडिया तो गेन कर गया कि सुपर पावर को यहां पर लाकर उसने अपने उसके उससे उससे तमाम फायदे ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, तो ये तो उनका प्लस हो गया, अब हम क्या करें, ओ क्या किया जाए, क्या किया जाए, हम चाइना के साथ बहुत जबरदस्त किस्म का, कमाल किस्म का सी पैक कर लेते हैं। इन फर्स्ट केस, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दे आर वन प्लस, और हम क्या करें, वन माइनस। हमने उसका काउंटर मूव किया स्टेप 2 में, चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कर लिया, और उसमें क्या किया हमने, सी पैक को साइन कर लिया। हमारा एक प्लस हो गया, और वो किस तरह से, इंडिया के लिए एक नुकसान हो गया, इंडिया के लिए एक माइनस हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया कि नहीं। गेन ऑफ वन इज द लॉस ऑफ द अदर। तो हमने क्या किया, दूसरी मूव चल ली उसको काउंटर करने के लिए, वो जो उसने गेन किया था, हमने चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी गेन ऑफ वन इज द लॉस ऑफ द अदर। अब आप देखिए कि इंडिया ने अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया, ये तो प्लस हो गया उनके हिस्से में, हमारे लिए क्या हो गया, माइनस। फिर इंडिया ने फॉर एग्जांपल चाइना के साथ बहुत कमाल का कुछ कर दिया, एक और प्लस हो गया, हम एक और माइनस हो गया, वो जितने प्लस लेते जाएगा हम खुद ब खुद एक माइनस करते जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जो ही वो प्लस करता है हम यहां परेशान हो जाते हैं, काउंटर मूव, काउंटर मूव। आप जैसा कोई स्ट्रेटेजिस्ट फॉरेन ऑफिस में, वो कहते हैं भाई इसको काउंटर करो, वो एक स्टेप आगे चला गया, इसको काउंटर किया जाए। तो गेन ऑफ हो गया उसका एक, हमारा एक लॉस हो गया, अब इसकी काउंटर मूव कीजिए, कोई और स्ट्रेटेजी इख्तियार कीजिए जिसमें वो एक माइनस जाएगा और हम प्लस जाएंगे, और खुद ब खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको कि नहीं? तो गेन ऑफ वन इज द लॉस ऑफ द अदर एंड नेट रिजल्ट इज जीरो। उसका एक प्लस हो गया, हमारा माइनस, हमने काउंटर मूव की, एक प्लस हमारा हो गया, माइनस एक उसका हो गया। बताइए कितना रिजल्ट आया?
नेट रिजल्ट क्या है? जीरो सम गेम। समझ आई बात की कि नहीं? तो ये स्ट्रेटेजिस्ट हैं। अच्छा, एक दफा फिर देखिए, ये जो जीरो सम गेम की जो बात कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है? परसेप्शन। हम बैठे हुए सोच रहे हैं यार इंडियंस ने एक मूव कर ली है, हम तो मारे गए हैं। तो ये मैंने बताया ना कि गेम थ्योरी में क्या होता है, बुनियादी तौर पर गेम थ्योरी में परसेप्शन की जंग होती है। वो जितने भी आप जैसे लोग होते हैं ना जो फॉरेन ऑफिस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, वो दुश्मन की मूव को देख रहे होते हैं कि वो किस तरह मूव कर रहा है, और उसकी मूव की बुनियाद, अच्छा तो वो ये सोच रहा होगा, व्हाट इज इट कॉल्ड इन इंग्लिश? इट इज कॉल्ड परसेप्शन। सो यू आर इन फैक्ट काउंटरिंग द परसेप्शन ऑफ द एनिमी, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड गेम। गेम थ्योरी कहते हैं इसको, या इसको कहते हैं गेम ऑफ परसेप्शन। एक बात समझ आ रही है आपको? तो वन थिंग इज जीरो सम गेम दैट आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू पीपल. सो एनी स्टेप, आई जस्ट सेड दैट एनी स्टेप that India takes, for example, growing US-India relations, they are negative for Pakistan, and therefore Pakistan perceives it as a big loss that India and United States are getting closer to each other. So it wants to counter India-US relations by strengthening its ties further with China. For example, as a counter move, CPAC is taking place, and that is making India quite uneasy and quite uncomfortable. So this means that Pakistan's counter move was wonderful, and it gained. The second example could be um, uh, तो ये चीज समझ। मैं सेकंड एग्जांपल जो मैं दूसरे के साथ, रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि गेम थ्योरी इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज जीरो सम गेम एंड अदर इज नॉन जीरो सम गेम। दूसरी टाइप है, ठीक है, नॉन जीरो सम गेम। नॉन जीरो सम गेम को हम कहते हैं वेरिएबल सम गेम भी कहते हैं, वेरिएबल सम गेम। अच्छा, जैसे जीरो सम गेम जो मैंने अभी बताया, ये बिल्कुल उसका अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, वहां पर क्या है, जीरो सम गेम में ट्रस्ट डेफिसिट है, तो एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। वेरिएबल सम गेम, नॉन जीरो सम गेम में क्या होता है, जरा ये देख लीजिएगा। सम ऑफ ऑल प्लेयर्स पे ऑफ डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजी दे यूटिलाइज। क्या होता है कि दोनों को फायदा होता है। नॉन जीरो सम गेम को आप कह सकते हैं विन विन सिचुएशन। नॉन जीरो सम गेम को वेरिएबल सम गेम भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, वो बोथ गेम, but it depends on the strategy. It depends on the strategy that they apply respectively. उन दोनों दोनों एक दूसरे से ज्यादा गेन करने की कोशिश, दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं और दोनों अपने अपने फायदे उठाते हैं, लेकिन कोई ये कोशिश नहीं कर रहा होता कि ये कम फायदा उठाए। दोनों की कोशिश अपने अपने लिए ज्यादा होती है, ठीक है। तो नॉन जीरो सम गेम में क्या चीज होती है, नॉन जीरो सम गेम में हम ये देखते हैं कि दोनों दे बोथ वांट टू गेन मैक्सिमम। तो किस चीज में वो आजाद होते हैं? दे आर इंडिपेंडेंट इन टेकिंग अ गुड डिसीजन। दे आर इंडिपेंडेंट इन टेकिंग अ गुड डिसीजन। तो जिसने जितना अच्छा फैसला लिया वो उतना फायदा उसको होगा, जिसने, लेकिन दूसरा उसको डिस्टर्ब नहीं करता कि तुम इससे कम फायदा लेकर जाओ। जिसकी जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी वो उतना ज्यादा फायदा उधर से निकाल कर ले जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजी फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, बोथ आर डूइंग दैट। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि इस वक्त हम दोनों, पाकिस्तान और इंडिया, हम दोनों जीरो सम गेम में पड़े हुए हैं। वो एक न्यूक्लियर वो मिसाइल का टेस्ट करते हैं, हम दो मिसाइल टेस्ट करते हैं। वो अमेरिका के करीब हो रहे हैं, हम चाइना के करीब हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जीरो सम गेम है। नॉन जीरो सम गेम क्या है? नॉन जीरो सम गेम ये है, थोड़ी इधर तक, नॉन जीरो सम गेम ये मान चाहे बता सुबह चेक अप। Thank you very much. नॉन जीरो सम गेम में क्या होता है, उसमें ये होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को दुश्मन की नजर से नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल, दोनों की कोशिश ये है कि जी हम इकोनॉमिकली बेनिफिट्स हासिल करें यहां से, साउथ एशिया से,
दोनों की कोशिश ये है कि नॉट टू काउंटर ईच अदर बट टू कोऑपरेट विद ईच अदर। जीरो सम गेम में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं। नॉन जीरो सम गेम में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, और उस कोऑपरेशन में कहते हैं बस जिसको जितना फायदा हो जाए हो जाए। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं साउथ एशिया में, बस जो जितना फायदा ले जाए ले जाए, ठीक है ना, जिसकी जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी वो उतना फायदा ले जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नॉन जीरो सम गेम। नॉन जीरो सम गेम में क्या होता है, विन विन सिचुएशन होती है, दोनों फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, नॉन जीरो सम गेम में एक चीज ज़हन में रखिएगा, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं मुख्तलिफ अल्फाज में, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ रही होगी। डिपेंड्स आपकी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है, डिपेंड्स आपका एक्टर कितना अच्छा सोच रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करते हैं, तो आप ये मत कहें हाँ जी $50 बिलियन हमें फायदा होगा, 50 इंडिया को होगा, और ये लिख लेते हैं। ये आप लिख नहीं सकते हैं भाई, जिसका जितना अच्छा डिसीजन होगा, जो जितना ज्यादा फायदा उठा सकता है उठाए। तो अगर आपने फायदा कम उठा रहे हैं तो फाइन, इंडिया ज्यादा फायदा उठा रहा है, फाइन, लेकिन इंडिया ने आपको रोका नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कोलैबोरेशन आपका बड़ा बेहतरीन हो रहा है, आप बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू इन नॉन जीरो सम गेम अ वेरी गुड एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, पाकिस्तान चाइना सी पैक, Pakistan is getting benefit, China is getting benefit. Both are the winners, win-win situation. Zero sum game, one is countering the other. One move positive, then there would be another move, counter move जिसे हम कहेंगे. They both try to neutralize each other. मेरी बात समझ आ रही है? Remember that we studied till now game theory, and in game theory I tried to explain the game of perception. Policymakers, what they think here while sitting in Islamabad, and then perceiving what is thought there in New Delhi. And this is all the perception game. मैं जितनी भी अगली थ्योरीज आपको बताने लगूं, सब में परसेप्शन ही होगा, ठीक है। तो दूसरी जीरो सम गेम में क्या हो रहा है भाई, हम दोनों कोऑपरेट करेंगे, हम दोनों कोलैबोरेट करेंगे, जिसकी जितनी अच्छी थ्योरी, जिसकी जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, प्लान ऑफ एक्शन होगा, उतना ज्यादा वो वहां से फायदा निकाल कर ले जाएगा। तो फॉर एग्जांपल सी पैक में आप देखें ना, बहुत से लोग कहते हैं कि जी चाइना को ज्यादा फायदा है, हमें कम फायदा है। भाई आप भी ज्यादा फायदा उठाएं, आपको किसी ने रोका तो नहीं है ना। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जीरो सम गेम में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और नॉन जीरो सम गेम में आप कोऑपरेट करते हैं, विन विन सिचुएशन होती है। आपकी मर्ज जितना अच्छा डिसीजन लेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। मैं